10 a.m. to your board centers. From 11:10 to 11:30 is your reading time. A 20-minute reading time is being provided to you, and this reading time is crucial for you to decide which questions you will not attempt. From 11:30 is your exam time. This is your 90-minute exam time, and your paper ends at 1 p.m. So that's your cutoff time. As far as your roll numbers are concerned, the CBSE is going to send it by today or maximum by tomorrow, and they will reach your school. You do not need to worry much because this information about your roll number etc. would be pre-filled in the OMR sheet which will be given to you for the exam. ये सारे details पहले से filled होंगे जो sheet आपको examination में fill करने के लिए दी जाएगी. Important. You have to use a blue or a black ball point beta. Please do not use a gel pen. It's not allowed. It has to be a ball point pen. एक एडवाइस देते हो, बॉल पॉइंट पेन जब खरीदोगे ना बेटा तो पतली टिप वाला मत करना क्योंकि शेडिंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा. थोड़ा थिक बॉल पॉइंट पेन लीजिएगा. ओके और इतना भी थिक नहीं कि हर जगह उसके स्पॉट्स आते रहे. प्लीज ट्राई इट आउट कि वो एक जगह पे अगर आप सर्कल कर रहे हैं तो आपके हाथ लगने से हर जगह पे ब्लैक स्पॉटिंग ना हो जाए. लास्टली, यूज ऑफ पेंसिल इज प्रोहिबिटेड and there is a strict action which would be taken if you do your OMR sheet with a pencil. Now, welcome to the OMR sheet which you will be getting for your examination when you reach your centers. Now, this OMR sheet is to be filled by you as it is written here only in a blue-black ballpoint pen. That's the first point. Please, as I said, ballpoint pen ध्यान से खरीदिएगा. First shelf में आपका roll number है which will be already filled in the sheet. Digits and words everything will be filled. आपको fill करने की जरूरत नहीं होगी. Day and date of the examination आपके पास पहले से date sheet है, ये भी filled होगा. Center number and the name of the center would also be filled. Subject code और name of the subject, for example chemistry है तो 043 और chemistry यहाँ पे लिखा हुआ होगा. Candidate's name आपका नाम जो भी होगा यहाँ पे printed होगा. Father's name भी printed होगा. School code and the name भी printed होगा. So कई बार क्या होता है सेंटर और आपका स्कूल अलग हो सकते हैं पर ज्यादातर लोगों का सेंटर उनका अपना ही स्कूल होगा तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट मे बी सेम बट यू डोंट नीड टू वरी. ये सारा का सारा सेक्शन यहां से लेकर यहां तक विल बी प्री फिल्ड. ये आपको फिल्ड मिलेगा, प्रिंटेड मिलेगा. फिर भी आप एक बार चाहें तो उसको देख सकते हैं जस्ट इन केस ऑफ एन एरर जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है. सीबीएसई हैज checked the documents. You have signed your board registration form many a times. Your parents have also signed it. So इसमें error की probability nil है. Fine. और ये पहले से भरा होगा तो इसकी फिक्र आपको नहीं करनी. Beyond this, ये है क्वेश्चन पेपर का कोड. आपके क्वेश्चन पेपर में टॉप राइट में एक कोड लिखा हुआ होगा जिसमें यहां पे 3 डिजिट्स या अल्फाबेट्स हो सकते हैं, फिर एक डिजिट और फिर एक डिजिट होगा. तो ये पार्ट समथिंग लाइक लेट अस से इट इज DL34B supposing it could be something like that. Whatever it is, you have to copy it out from your question paper and fill it here. Moving ahead, this is to be signed by your center superintendent. वहां के एग्जामिनर जो भी आपके इन्विजिलेटर्स होंगे उनको साइन करना है तो इसकी फिक्र भी आपको नहीं करनी है. नाउ मूविंग अहेड, ये आपका आंसरिंग सेक्शन है. इसके बारे में मैं 1 मिनट के बाद बात करती हूं. उससे पहले मुझे यह बताना है कि इस बॉक्स में यहां पर आपको साइन करना है. ये रहा मेरा सिग्नेचर, मैंने कर दिया. प्लस यहां पर एक स्टेटमेंट आपको खुद लिखना है एंड दैट स्टेटमेंट इज दैट आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट. ये आपको खुद लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये सिग्नेचर करना पड़ेगा. दिस इज द ओनली थिंग जो कि आपको लिखनी है पेपर में बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्टिव पेपर. सब्जेक्टिव तो बेटा है नहीं तो ये ही सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट है जो आपको खुद लिख के सिग्नेचर करना पड़ेगा. इसके नीचे का सारा हिस्सा where it is how much you score, how many questions are corrected, signature of the coordinator, observer, evaluator, invigilator. This is not your part.
प्लीज डू नॉट टच दिस पार्ट, यू एंड हियर, आपका सिग्नेचर और यहां पे आपका ये राइट अप के बाद नीचे इसके आपको कुछ नहीं लिखना। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन सेक्शन। क्वेश्चन सेक्शन को देखते हैं। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक यहां पर है, 16 से लेकर 30 तक ये रहे, 31 से लेकर 45 तक ये वाला कॉलम है और 46 से लेकर 60 तक ये वाला कॉलम है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपकी आंसर शीट में 60 क्वेश्चंस का प्रोविजन है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चंस तो होंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री क्लास 12th में 55 क्वेश्चंस ही हैं, तो आपको ये आई वुड एडवाइज कि 55 पे मार्क लगा दीजिएगा, इसके आगे आपको नहीं करना। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप इसको यूज करने की कोशिश करें कि कोई पूरा गलत क्वेश्चन हो गया, सपोजिंग 23rd क्वेश्चन गलत हो गया तो आप इसको क्वेश्चन काट के यहां पे पूरा लाइन लगा के और यहां पे लिख दें जी ये मेरा 23rd क्वेश्चन है और मैं इसको यहां कर रहा हूं। दिस इज नॉट अलाउड। सो यू विल नॉट, अगर 55 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर है तो आप इसके बियॉन्ड अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। दैट्स पॉइंट नंबर 1। नाउ मूविंग अहेड, पेपर में करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मेरे क्वेश्चन नंबर 1, जब मेरा रीडिंग टाइम है ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रीडिंग टाइम में प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन से क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे। सपोजिंग आपके पेपर में सेक्शन 1 जो है वो 25 क्वेश्चंस का है, ये रहा, तो मैंने यहां मार्क कर दिया। सेक्शन 1 मेरा 25 क्वेश्चंस का है और इसमें मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे कौन से 4 या 5 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो जौन से नहीं करने हैं और वो श्योर है, यू आर इफ यू आर श्योर, रीडिंग टाइम में अगर आपने ये चेक कर लिया है तो आप उनके क्वेश्चंस को जो आपको नहीं अटेम्प्ट करने, मेरे को 5th क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, मैंने उसमें गोला मार दिया। इस गोले मारने का मतलब है मैं ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रही। मेरे को 10th क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट करना है, मैंने डिसीजन ले लिया, आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता है तो मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं करना। 14th क्वेश्चन वाला टॉपिक भी ऐसा था, आई एम नॉट 100% श्योर, मुझे वो भी नहीं करना। जब आप ये सर्कलिंग कर लेते हैं ना शुरू में, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस में से करने तो आपको 20 है सपोजिंग सेक्शन 1 में, तो आपको 5 क्वेश्चन सर्कल भी तो करने पड़ेंगे। और अगर मैंने ये 5 क्वेश्चंस डिसाइड कर लिए पहले ही कि ये मेरे क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं अटेम्प्ट करने, तो बात खत्म हो जाती है। ये सर्कल करने का मतलब है आप इन क्वेश्चंस को अब हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो ये आपको सर्कल तभी करना है जब यू आर 100% श्योर दैट दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई विल नॉट अटेम्प्ट। सीबीएसई ने बहुत अच्छा सिस्टम ऑफ आंसरिंग दिया है आपको। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे, आपके हिसाब से आंसर सी था, तो आपने यहां पे सी को एनसर्कल कर दिया। मैंने पहले ही कहा प्लीज पेन में थोड़ा सा थिक पेन लेना ताकि जल्दी से सर्कलिंग हो जाए। ठीक है, सी सर्कल कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 चेक करा, उसका आंसर मेरा बी बन रहा था, मैंने उसको भी सर्कल कर दिया। बेटा एंड के लिए सारे के सारे 90 मिनट्स के बाद आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सर्कल करने के बारे में मत सोचिएगा, उसमें पैनिक हो जाता है और एंड में सारे क्वेश्चंस को सर्कल करने में एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया तो सारा गलत हो जाएगा। बट सीबीएसई ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है कि अगर ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 5 क्वेश्चंस आंसर कर लिए ऐसे, मैंने कहा ना बॉल पॉइंट पेन थोड़ा सा ध्यान से लेना बेटा, बहुत पतला मत लेना नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब इस केस में अगर मैंने ये कर दिया है, अब क्या मतलब, ये वाला क्वेश्चन तो नॉट अटेम्प्टेड है। अगर आपने ये एनसर्कल कर दिया है इसका मतलब दिस क्वेश्चन विल नॉट बी मार्क्ड। आपने अंदर भी भर दिया है और बाहर भी भर दिया है, पर एग्जामिनर सिर्फ इन दोनों को देखेगा। फाइनली अगर आपने ये मार्क कर दिया तो दिस क्वेश्चन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। ओके, दैट्स 1। सेकेंडली सपोज करो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपका सी आंसर आपने सोचा था, आपने इसको एनसर्कल कर दिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन हियर किया तब क्वेश्चन जब आपने दोबारा से पढ़ा तो आपने देखा कि मेरा आंसर सी तो भरा है पर ये तो मेरा ठीक नहीं है, आंसर तो बी होना चाहिए, तो आप यहां पर बी लिख दीजिए। इन दोनों में से इसको देखा जाएगा, इसको नहीं, तो विच मीन्स दैट इज एन एडवांटेज। अगर आपसे गलती से ये हो भी गया है तो आपके पास एक फाइनल कॉल है यहां पे लिखने की, पर ये लिखना जरूर है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। विच मीन्स जब आप यहां पर बी पर हैं और आपको 100% श्योर है तो आप यहां पे बी लिख दीजिए। यहां पे आपका सी, आप 100% श्योर है तो आप यहां पे सी लिख दीजिए। दिस इज वॉट विल बी चेक्ड। एज आई सेड, ये वाला अगर आपसे गलत हो गया है तो सेकेंड स्टेज पे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और थर्ड स्टेज पे अगर आपको अब रियलाइज हो गया कि ये वाला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहता,
तो आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं और ये नॉट अटेम्प्टेड माना चला जाएगा, विच मीन्स पेपर अटेम्प्ट करते वक्त प्लीज बी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये कैसे अपीयर करना है. सो यू कैन एनसर्कल जिसमें डाउट, जिसको 100% हो ना, सपोजिंग 8th क्वेश्चन का आंसर तुमको ए लग रहा है एंड यू आर 100% श्योर, तो बिना ज्यादा दिमाग लगाए फटाफट यहां पे ए लिखो. जिन पे आप 100% श्योर हो ना, फॉर एग्जाम्पल ये रहा 10th क्वेश्चन, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो पहले से करा हुआ, तो वैसे ही रूल्ड आउट हो जाएगा, कोई चेक ही नहीं करेगा क्योंकि आप यहां पे सर्कल कर चुके हैं. तो ये वाली एनसर्कलिंग सिर्फ तब करिएगा हैश वाले बॉक्स में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस. एक है स्टार जहां पे आपको अपना आंसर लिखना है, करेक्ट रिस्पॉन्स जो लिखना है. एक है हैश. हैश इज ओनली टू बी कंसिडर्ड इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, तो उनको एनसर्कल करना. स्टार हैज अ प्रायोरिटी ओवर रिस्पॉन्सेस. इनके हिसाब से अगर स्टार में चेंज है तो स्टार वाले को एप्लीकेबल माना जाएगा. एक बार दोबारा समझा देती हूं. क्वेश्चन नंबर 11 में आपने एनसर्कल तो किया ए, लेकिन यहां पे लिखा सी, तो एग्जामिनर सी को चेक करेगा, ए को नहीं. क्वेश्चन नंबर 13 में आपने लिखा बी और आपने यहां पे बाद में रियलाइज किया ये बी में से गलत हो गया है, आंसर डी है, तो एग्जामिनर ने ये डी देखना है. बिकॉज द एग्जामिनर इज चेकिंग, इट्स अ ह्यूमन पेपर चेकिंग, इट इज नॉट बाय अ मशीन कि इस पे वैलिड होगा. बट ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ के चलेंगे. दिस स्टार बॉक्स इज ओनली गिवन फॉर योर कन्वीनियंस, सो दैट अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपसे गलती हो गई है तो आप बॉक्स में करेक्ट कर सकते हैं. प्लीज डू नॉट कट एंड ओवरराइट. कटिंग एंड ओवरराइट से कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर आपने ऐसा कुछ किया, गलतियां करने के तरीके कौन से? हैव अ लुक एट दिस. दीज आर द रॉन्ग मेथड्स. इस रॉन्ग मेथड में देखिए, एक बच्चे ने 2 सर्कल करे और बीच में किसी को टिक और एक क्रॉस मारे. ऐसे 2 एनसर्कल आप कर ही नहीं सकते. शेडिंग 2 में होनी ही नहीं है. ये टिक विक कुछ नहीं. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट. सेकेंड वाले में आपने इसमें टिक मार दिया छोटा सा. नो, टिक विक नहीं मारना है, आपको पूरा शेड करना है. ऑफकोर्स उसके आगे जो हैश वाला बॉक्स है उसमें आपको लिखना भी है. स्टार वाला बॉक्स, सॉरी, स्टार वाले बॉक्स में आपको ये आपका रिस्पॉन्स लिखना भी है. थर्ड देखिए, अगेन ये दो ऑप्शंस तो आपको करना ही नहीं है बेटा, इट इज इनकरेक्ट. फोर्थ वाले ऑप्शन में कुछ ऐसे कोई डिजाइन आपको नहीं बनाने हैं, क्रॉस और ये टिक, ऐसा कुछ अगर ये गलत है और आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते प्लीज छोड़ दीजिए. सो बहुत सेंसिबली आधा इनसर्कलिंग नॉट अलाउड है, पूरा इनसर्कल होना चाहिए. ये कुछ इनसर्कल, ये थोड़ा सा करना शुरू किया फिर पूरा कर दिया, ऐसा नहीं अलाउड है. ये सारे गलत मेथड्स हैं ये. बट एज आई सेड, सीबीएसई हैज बीन वेरी जेनरस टुवर्ड्स स्टूडेंट्स दिस ईयर, और उन्होंने आपको एक ये स्टार बॉक्स दे दिया है जिसमें आपको अपने राइट रिस्पॉन्सेस का अल्फाबेट लिखना है, ताकि अगर आपसे गलत एनसर्कलिंग भी हो गई हो तो आप राइट रिस्पॉन्स लिखकर अपने आप को कवर अप कर सकते हैं. एक लास्ट बात, सपोज करो कि आपके पेपर में 3 सेक्शंस है. जैसे केमिस्ट्री क्लास 12th में देयर आर 3 सेक्शंस. द फर्स्ट सेक्शन इज ऑफ 25 क्वेश्चंस, यहां पे मार्क कर दिया. सेकेंड सेक्शन 49 पे खत्म होता है, तो मैंने यहां पे मार्क कर दिया. रेड से नहीं बेटा, ब्लू से ही करेंगे. और लास्ट सेक्शन 55 पे होता है. ये क्यों मार्क कर रहे हैं? ताकि आपको ये बात याद रहे कि अप टू 25 क्वेश्चंस मुझे 5 नहीं अटेम्प्ट करने, अप टू 49 क्वेश्चंस मुझे 4 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने, और लास्ट के 50 to 55 में मुझे 1 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है. ये बात सबको पता है कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस, सपोज करो 50 to 55 में से आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, इसका आंसर आपका बी था, इसका आंसर भी आपका बी था, इसका आंसर आपका सी था. मैं सिर्फ करके दिखा रही हूं बेटा. और आपने कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं, ठीक है. आपने फिर यहां पे लिख दिया, आपके लिए ये बी था, आपको सारे आते थे और सारे ठीक थे. पर एग्जामिनर क्या करेगा? वो आपके 6 आंसर्स थोड़ी देखेगा. इस क्वेश्चन को वो रूल आउट कर देगा. ओवर अटेम्प्टेड क्वेश्चंस लास्ट वाले सारे रूल आउट हो जाएंगे. तो प्लीज या तो आप खुद डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको कौन सा वाला नहीं अटेम्प्ट करना है और उसमें गोला मार दीजिए ऐसे, नहीं तो एग्जामिनर लास्ट वाले क्वेश्चंस रूल आउट कर देगा. एक और बात, सपोज करिए आपने 23rd क्वेश्चन में पहले ये मारा, फिर आपको लगा नहीं ये तो गलती हो चुका, और फिर आपको फाइनली लगा कि नहीं आंसर डी होना चाहिए, फिर आपको लगा नहीं जी ये तो ए होना चाहिए. अब इतनी खिचड़ी पकाने के बाद आपको लगा कि मैं ऐसा करता हूं, 23rd ना यहां पे कर देता हूं, इसको काटता हूं, यहां पे लिखता हूं 23 और उसके बाद मैं लिख देता हूं कि भाई ए आंसर है और यहां पे मैं ए कर देता हूं और ये बोल देता हूं दिस इज क्वेश्चन नंबर 23.
ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे. दिस इज नॉट अलाउड. सो दिस विल नॉट बी मार्क्ड. तो ऐसा कोई तरीका, पेपर में क्वेश्चंस 55 हैं, तो आप 55 से बियॉन्ड कुछ भी अटेम्प्ट करेंगे तो इट विल नॉट बी मार्क्ड. इज दैट ओके? देयर विल बी नो इवैल्यूएशंस फॉर एनी क्वेश्चंस अबव द क्वेश्चन नंबर्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. जितने क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर्स हैं, बस उतने तक ही मार्किंग होगी. उसके बाद वाला कोई भी एग्जामिनर मार्क नहीं करेगा. फाइन. तो बेटा बहुत ध्यान से OMR शीट को यूज करिएगा. आंसर्स बहुत सोच समझ के कीजिएगा. यू कैन डू इट सेक्शन वाइज. आप ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेक्शन खत्म करने के बाद फिर एक साथ भर दीजिए फर्स्ट सेक्शन, फिर सेकंड सेक्शन खत्म करने के बाद सेकंड सेक्शन की शेडिंग कर लीजिए, और फिर थर्ड सेक्शन. पर सारा का सारा एंड के लिए मत छोड़िएगा. इज दैट ओके? आई होप आई हैव ट्राइड टू हेल्प यू आउट. एक बात लास्ट में फिर से ड्रिल कर रही हूं, इसकी इंपॉर्टेंस इससे ज्यादा है. यहां पे गलती हो गई तो एग्जामिनर इसको देखेगा, विच मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, ये फिल्ड होने जरूरी है. इज दैट ओके? आई होप आई हैव बीन ऑफ हेल्प टू यू. डू ऑसमली वेल इन लाइफ. Bless you loads. Take care. Stay healthy.